Hello students, कैसे हैं आप सब लोग? I hope everybody is fine and now you are in the final stage for your preparation for board exams. चलिए, in the last video we already discussed what is introduction of the definite integrals and today we are going to do what are the properties. There are 7 to 8 properties of definite integrals which you should know thoroughly because they will make your questions much easier for you. Otherwise, अगर आप normal integration करने वाले हैं उसमें, then I think problems will occur. But if you apply these properties, then your questions will become very, very, very easy. ठीक है, आपको देख के लगेगा कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, कैसा है, कैसे नहीं होगा. But trust me, अगर आप इनको अप्लाई करेंगे, then you are going to solve your questions like a cakewalk. चलिए फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं प्रॉपर्टीज को. Now, what is basic explanation? First of all, जैसे कि आपने क्वेश्चन कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, सपोज आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है -1 to 1. And if you ask you solve sine to the power 7x dx, suppose such type of questions you have. Or if I ask you integral 0 to pi by 2, suppose, and I ask you to solve sine to the power 5x divided sine to the power 5x plus cos to the power 5x. अगर आप इनको normally solve करते हैं, तो I don't think so कि आपको ये easily solve होने वाले हैं. ठीक है? For such kind of problems, for such kind of questions, we have, like suppose, properties of definite integrals. ठीक है, तो let's discuss all properties one by one. First of all, first property, change of variable. As you can see, this is change of variables. Change of variable का क्या मतलब है? Suppose you have any function in the variable x and limit is from a to b. Then if you change x के प्लेस पे अगर आपने z कर दिया या t कर दिया या u कर दिया, आपने कुछ भी अगर वेरिएबल को आप चेंज कर देते हो ना, तो आपका जो आंसर होता है there will be no effect on that. Means suppose if you write a to b fx dx, suppose you have the function this. Let's suppose this is the function integral a to like suppose 2 to 3. Let's suppose 2 to 3 x square dx. Suppose this is the function suppose. So if I write this function as limit will remain same 2 to 3. If I write it as t square dt, or if I write that this is slash not equals to t, this is just slash. If I write this 2 to 3, let's suppose u square du. If I write that v square dv integral again 2 to 3, or if I write that integral 2 to 3 s square ds, मैं किसी भी वेरिएबल में इसको लिख दूं, इधर x, t, u, v और ds. If I change any of the variable, then there is going to be no effect on the value of the integration. आपके उसके जो आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा. That's we call this property as change of variable. और ये बहुत ईजी है, इसका कुछ ज्यादा यूज होता भी नहीं है. किसी क्वेश्चन में आपको स्लाइट इसका यूज देखने को मिलेगा. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट हाउ टू चेंज वेरिएबल्स. तो इफ यू चेंज द वेरिएबल x भी और आपने x, और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने x किया है, अगर आपने x किया है और dx यहाँ पे भी x है ना, तो आपको वो भी चेंज करना है, fz और dz, ft dt या fu du या fs ds. सो यू नीड टू चेंज बोथ द वेरिएबल, बोथ द जहां पे x आया वहां पे आपने उसको चेंज कर देना. दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी. नाउ लेट्स डिस्कस प्रॉपर्टी नंबर 2, इंटरचेंज ऑफ लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन. कैसे कि देखो यहाँ पे क्या था, फंक्शन विल रिमेन सेम, फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं है. लिमिट अर्लियर वाज a टू b एंड नाउ दिस हैज बिकम b टू a. ठीक है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लोअर लिमिट होती है दैट इज ऑलवेज लेसर देन द अपर लिमिट, लेसर देन द अपर लिमिट. इसका मतलब क्या है कि सपोज यू हैव द क्वेश्चन लाइक सपोज यू हैव -1 to -1 x square dx. ठीक है, सपोज आपके पास ये है, तो यू कैन राइट दिस इज इक्वल्स टू विद नेगेटिव साइन. आपने क्या कर देना है, अब देखो यहाँ पे दिस इज अपर वन इज बिगर देन द लोअर वन. तो व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट मेक द लोअर अपर वन को लोअर वन एंड द लोअर वन इज अपर वन. फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बट हाँ जो उसका आंसर होगा दैट विल बिकम नेगेटिव ऑफ दैट. ठीक है, आप चेक करके देख लीजिए. देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, विल बी x³ फ्रॉम 1 to -1, तो ये आपको वैल्यू देगा 1/3. अगर आप इसको -1 पुट करते हैं तो -1 और माइनस ऑफ 1, तो यू विल हैव द वैल्यू ऑफ -2/3 फ्रॉम हियर. इसको चेक कर लीजिए. देखिए अगर मैं नॉर्मली सॉल्व करती हूँ तो x³ दिस इज फ्रॉम 1 to -1, तो 1 to -1 में क्या है, दिस इज 1/3 अगेन. सो 1 माइनस ऑफ प्लस दिस, क्या आंसर आने वाला है 2/3. बट आपने देखा मैंने भी माइनस साइन नहीं लगाया है, तो ये माइनस का साइन आई नीड टू पुट इट हियर टू मेक इट देम इक्वल. तो यहाँ पे क्या देता है कि यहाँ पे आपने माइनस का साइन लगाना ही लगाना व्हेन यू आर इंटरचेंजिंग द लिमिट. क्लियर है बात? And this is commonly used when you have the upper limit is what? Lesser than the lower limit. Clear है? So this is the second property, that interchange of limit of integration. What does it affect your function? आपका क्या आंसर आएगा कि जो भी आपका आंसर हो गया, अगर आपने इंटरचेंज किया है लिमिट्स को, that will become just the negative of the initial answer. ठीक है,
the final answer will be equals to the negative of the original answer. This is just how to interchange the limits of integration. This is property number 2. Now let's move on to property number 3. Integral a to b function आपको दिया है, then how can you break the limit? Suppose you have the function, suppose this kind of function. Suppose आपके पास कुछ ऐसे फंक्शन था और फिर फंक्शन कुछ ऐसे बन गया, ठीक है. तो देखो फंक्शन यहाँ पे गया और यहाँ पे इसने एक ब्रेक लिया, ठीक है. तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू हैव कि आपने फंक्शन पहले यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे और फिर ऑल द फंक्शन वाज फ्रॉम ए टू बी, ऐसे था. लेकिन यहाँ पे एक ब्रेकिंग पॉइंट आया तो मैंने इसको क्या नाम दे दिया, मैंने इसको सी नाम दे दिया, जो कि इन दोनों के बीच में आता है. एंड आई हैव रिटन आल्सो हियर दैट सी लाइज बिटवीन ए टू बी. तो नाउ यू कैन चेंज, अर्लियर इट वाज ए टू बी फंक्शन, अर्लियर फंक्शन वाज ए टू बी, बट नाउ व्हाट आई हैव डन ए टू बी, a to c and plus then c to b. I have broken out my function. I have broken my function from here to here, then fx dx and this will be fx dx. ठीक है बात. तो इस तरीके से दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट यू कैन ब्रेक योर फंक्शन इनटू टू पार्ट्स. तो फंक्शन अगर आपने तोड़ा है तो आपके पास आपको लिमिट को आपको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है. बेसिकली लिमिट ही तोड़ती है और फंक्शन उसी के अकॉर्डिंग हम चूज करते हैं. दिस इज बेसिकली, इफ यू ट्रस्ट मी, दिस इज बेसिकली यूज्ड इन मॉडुलस फंक्शंस. जहां जहां आपको मॉडुलस फंक्शन दिखाइएगा, सपोज आपको कैलकुलेट करना है -2 to 3 x of x plus 3. सब आपने सपोज +1, सपोज आपने ये dx सॉल्व करना है. तो जहां जहां पे आपका मॉडुलस का क्वेश्चन आएगा ना, ट्रस्ट मी, यू विल अप्लाई द प्रॉपर्टी नंबर 3 ऑलवेज देयर. जब मॉडुलस का क्वेश्चन आएगा. लेट्स सी वन क्वेश्चन हियर. जैसे कि मैंने आपको पास ये क्वेश्चन दिया है -5 to 5. अब आपका इंटीग्रल है -5 to 5. अब आप बोलेंगे मैम ब्रेक कहाँ पे करें. देखिए ब्रेक आपने कहाँ पे करना है, जो भी फंक्शन आपने दिया हुआ है, जो भी फंक्शन आपने दिया है, पुट दैट इक्वल्स टू 0. x का वैल्यू कितना आएगा -2. तो -2 का वैल्यू हुआ, दैट इज द ब्रेकिंग पॉइंट. सो यू विल ब्रेक योर फंक्शन कैसे, -5 से लेके -2 पे, एंड देन यू विल ब्रेक योर फंक्शन -2 to 5. क्लियर है बात. अब अगर मैं मॉडुलस ऑफ दिस को रीडिफाइन करूं, you know how to redefine the function. अगर मैं इसको redefine करूं, I can write this plus of x plus 2 when it is greater than equals to -2 because the breaking point is -2. और यहाँ पे और क्या हो सकता है, it will become minus of this when it is lesser than 2. ये बात समझ, lesser than -2, ये बात समझ में आती है. ग्राफ बनाना आता है, कहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट है -2 पे, तो आधा फंक्शन जाएगा इधर और आधा जाएगा इधर. तो जो जाएगा इससे बड़ा, देखिए ये इससे बड़ा है तो वो बन जाएगा पॉजिटिव बिकॉज दिस इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. And if you see this is lesser than -2, it will go in the left hand direction which is of negative sign. तो आप देख लीजिए -5 से लेके -2. -2 is the upper limit. Upper limit मतलब उससे चीजें छोटी होनी चाहिए, और चीजें इससे छोटी कहाँ पे है, when it is lesser than -2. So minus of x plus 2 यहाँ पे आ जाएगा. Accordingly you choose your answer. और यहाँ पे -2 to 5. -2 to 5 मतलब ये -2 और ये 5 इनके बीच में, मतलब -2 से बड़ी होनी चाहिए चीजें, -2 पे बड़ी कहाँ पे है, when it is taking the positive sign. So this will be your final answer for this question. Rest you can solve easily. माइनस बाहर ले लीजिए, then you apply integration. x का हो जाएगा x square by 2, -5 to -2 and plus twice of, you will have -2 of plus 5 and then this is closed. Now plus again you will have x square by 2. This is from -2 to 5 and plus twice of again 5 of plus 2. This will be your final answer for this question. Rest you can solve. ठीक है, calculations is your part. The main motive is how to apply the properties. Clear है. So whenever you are given the third property or you suppose need to break your, suppose you have not given the third property, if you have modulus type of functions, then just apply your property number 3. You need to break your limits into two parts, whether it's 2 parts or 3 parts, whatever according to the given question. I hope it is clear. चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 4 की. If fx is a continuous function defined on some interval, तो उसने क्या दिया है कि आपको जो फंक्शन है a to b, limit is a to b and function is given to you, then you can replace your variable. You can replace, आपका जो variable होगा, you can replace as sum of limits. You can replace as that sum of limits minus that variable. Means suppose आपका क्वेश्चन है a to b, तो आप इसको कैसे रिप्लेस कर सकते हो, x को you can replace as a plus b of minus x. This is one of the most important property, और ये बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होती है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी नंबर 4 याद रखिए. अगर लिमिट चेंज नहीं हो रही है या ब्रेकिंग नहीं हो रही है या कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करिए आंख बंद करके, क्वेश्चन आराम से होगा. बात समझ में आती है. चलिए वन मोर क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बारे में. अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैन यू सॉल्व दिस, नहीं कर सकते. तो आप इसमें आप इस तरह के क्वेश्चन, अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, जब
इनमें ध्यान रखना whenever numerator and one of the denominator is same. कौन कौन सा? Numerator and one of the denominator is same. तब आपने क्या करना है, ये प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है. What was the property? You need to replace your variable x with sum of the limit. Sum of the limit is 2 plus 1. 2 plus 1 is 3 and minus the variable. ठीक है, तो इसको कैसे बना देंगे क्वेश्चन को? This was I earlier, तो ये बन जाएगा दूसरा I. This is equals to 1 to 2. Now what you need to do, जहां पे x है वहां पे आपने root x minus 3 कर देना है. So we can write this root 3 minus x divided by, यहाँ पे लिखेंगे 3 of minus इस x को चेंज करेंगे तो कितना आएगा? minus 3 plus x and plus root over 3 minus x. This will be your after changing. Now if you see, this will cancel out and you will have the question as 1 to 2 integral of root 3 minus x divided by root x plus root of 3 minus x. And if you see now, this was our first equation और ये आपका है second equation. ठीक है, तो जब ये आएगा तो आपने क्या कर देना, आपने दोनों को कर देना ऐड. क्यों? अगर आप देखो दोनों का क्या है, you are getting the denominator same. And this, after applying this property, always you will have the मतलब maximum 99% cases you will have always your denominator is supposed to be same. Now next thing is you just need to add them. अगर आप दोनों को ऐड करते हैं, you have to add your left hand side also. I plus I will become 2i and your question will become, as the limit is same, तो दोनों का same रहेगा. और अगर आप देखो तो दोनों का denominator is what? If denominator is same for both, so we can easily add the numerator parts. Clear about? We can easily add the numerator parts. Now what is this? Now if you see both are same, so we can cancel out this and 2i will be equals to integral. Now what is dx? Dx का integral क्या होता है? x होता है सिर्फ. So 1 to 2 and you will have 2i is equals to 2 minus 1 which is equals to I is equals to 1 by 2. This will be your final answer. I hope it is clear. This can come in root also. This can come in sin cos के terms पे also. ठीक है, sin cos में भी आ जाता है कई बारी. चलिए बात करते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्टी नंबर 5. ये प्रॉपर्टी इसी का क्या है, एक तरह से करोलरी वी कैन से, करोलरी ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 4. क्या थी प्रॉपर्टी? दैट इफ यू हैव a to b fx dx then you can replace your variable as what? x को किससे रिप्लेस करना है? सम ऑफ द लिमिट्स माइनस x से. तो क्वेश्चन बिकम हो जाएगा आपका, इट विल बिकम a to b f of. नाउ a plus b means a plus b minus x dx. अब उसने क्या किया है, ये स्पेशल केस लिया, उसने a को क्या कर दिया? a को 0 कर दिया और b को क्या बना दिया? a बना दिया. ठीक है, देखिए a को 0 कर दिया और b को क्या बना दिया? a बना दिया. सो दिस विल बिकम व्हाट? इंटीग्रल 0 to a. क्या था हमारा जो वेरिएबल होता है x, उसको रिप्लेस करते हैं सम ऑफ द लिमिट्स. इस दोनों का सम क्या होगा? a plus 0 मतलब a और माइनस वेरिएबल मतलब ये. तो दिस इज वी कैन से प्रॉपर्टी नंबर 5 इज नथिंग बट द करोलरी ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस प्रॉपर्टी रादर. ठीक है, क्लियर है? बात करते हैं इसके वन क्वेश्चन की. जैसे ये वाला क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिए, यू हैव 0 एंड यू हैव पाई बाय 2. तो मैंने बोला था ये प्रॉपर्टी नंबर 4 तब अप्लाई होती है. देखिए ये 5 है, अब बोलोगे ये तो 5 है, आपने तो 4 में बोला था. मैंने अभी बोला ना कि 4 प्रॉपर्टी नंबर 5 इज नथिंग बट द करोलरी ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 4. ठीक है, तो इसमें देखिए one of the denominator and one of the numerator is equals to one of the denominator. सेम है. अब चलिए अब बात कर लेते हैं इसको. अब क्या करना है इसमें? x tends to sum of the limit. sum of the limit मतलब पाई बाय 2 रहेगा because plus 0 doesn't make any sense and minus the x. तो आपका क्वेश्चन बन जाता है, if after replacing 0 to pi by 2 cos of it's pi by 2 minus x और नीचे से it will be sin of pi by 2 minus x plus cos to the power 5 of pi by 2 minus x, and you will have this what? This is integral 0 to pi by 2. Now if you see, this will convert to what? Cos pi by 2 minus x, it will convert to sin. तो हो जाएगा sin of power 5x और नीचे this sin will convert to cos. ये प्रॉपर्टी नंबर उसमें आपके क्लास 10th में sin 90 minus theta is cos theta and cos 90 minus theta is sin theta, and this will become this. So this is your second after changing and this was your first. And अब again if you see the denominator is what? Same. मैंने पहले बोला था कि दोनों denominator क्या आता है? Same आता है. और फिर आपने क्या कर देना नेक्स्ट स्टेप, फटाफट से बिना देखे कर देना कि दोनों को आपने क्या कर देना है? ऐड कर देना है. The original one and the one you are getting after replacing your variable. So left hand side will always give you 2i and you will have on the right hand side 0 to pi by 2. If you see again
this denominator is same for both. Sin to the power 5 cos to the power 5 dx. And again, if the denominator is same, you can easily add your numerator parts. देखो add हो गया, and if you see both are same, so we can cancel out, and 2i will be equals to how much? It is pi by 2 minus 0, because x dx का मतलब integral of dx will be x only. So i का वैल्यू कितना आया? I का वैल्यू आया pi by 4. This will be answer for this question. I hope it is clear. कोई डाउट किसी को नहीं है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रॉपर्टी. चलिए बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की. व्हाट इट सेज, इफ यू हैव इंटीग्रल 0 to 2a fx dx, तो यू कैन राइट इट 0 to a fx dx plus 0 to a. आपने इसको ब्रेक कर देना है. 0 to 2a को कैसे? 0 से a में और 0 से a में, और फंक्शन बिल्कुल 0 to fx में रहेगा पहले वाला, और जब दूसरे वाला करेंगे दैट विल बिकम 2a minus x इन सम ऑफ द लिमिट minus x. तो ये वाला ओरिजिनली रहेगा. जब आप इसको तोड़ेंगे और इस वाले का आपने क्या करें, आपने इसमें प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा दिया. ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5 कि आपने सम ऑफ द लिमिट्स माइनस x कर दिया. ठीक है, अब कैसे? अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से. इफ यू हैव सच काइंड ऑफ क्वेश्चन लाइक इंटीग्रल 0 to 2 पाई, अगर आप देखो ये फंक्शन हमेशा ट्वाइस में होता है मैक्सिमम, 2 पाई होगा, 2 होगा, इस तरीके से होगा. अगर नहीं है तो फिर सपोज पाई भी है तो भी आप उसको ब्रेक कर सकते हैं. सपोज आपको 0 से पाई दिया है तो आप उसको ब्रेक कर सकते हैं 0 to pi by 2. ठीक है, तो हाउ टू राइट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन? देखिए अब इसको दिस इज इक्वल टू आई, तो आपने क्या करना है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई. तो पहले वाले में क्या लिखेंगे? पहले वाले में क्या था कि आपने फंक्शन को वैसे का वैसे ही रखना. ठीक है, और दूसरे वाले में इंटीग्रल 0 to पाई में यू नीड टू राइट 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर साइन ऑफ 2 pi minus x. आई होप दिस इज रिमेम्बर टू यू. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है. इंटीग्रल 0 to पाई 1 अपॉन e टू द पावर साइन x एंड प्लस इंटीग्रल 0 to पाई. नाउ व्हाट इज साइन 2 pi minus x? अगर आप साइन 2 pi minus x की बात करें तो यू विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, आई होप सो. एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन इज व्हाट? इट इज नेगेटिव, सो इट विल बिकम 1 अपॉन e टू द पावर माइनस ऑफ साइन x. ठीक है, नाउ यू जस्ट नीड टू सिंप्लीफाई दिस. अगर आप इसको करते हैं इट विल बी 0 to pi by 2 1 अपॉन, देखिए प्रॉपर्टी लगाने के बाद ना अब इसमें कुछ करना ही नहीं है. 0 to pi by 2. इसको हाउ कैन यू राइट? इसको लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन टू द e टू द पावर साइन x. तो एलसीएम लीजिए और एलसीएम जाएगा ऊपर, e टू द पावर साइन x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर साइन x. ठीक है, एंड अगेन इफ यू सी डिनोमिनेटर ऑफ बोथ इज सेम, दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम है, लिमिट भी सेम है, तो आई एम कंबाइनिंग देयर. So it will become e to the 1 plus e to the power sin x. तो यहाँ पे बनेगा 1 plus e to the power, because denominator was different, so I have added here numerator also. This will cancel out, or 2i. It was only I, not 2i. It is integral 0 to pi dx. So this will become integral of pi minus 0, and i का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से pi. This will be answer for such kind of questions. ठीक है, कि अपने फंक्शन में प्रॉपर्टी अप्लाई कैसे करना है, बात समझ में आ रही है. चलिए फटाफट से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एप्स की, प्रॉपर्टी नंबर 7 की. 7 ने 8 समहाउ आर सेम. जैसे इंटीग्रल 0 to pi by 2, सॉरी 2 pi fx dx आपको दिया है, तो यू कैन ब्रेक दिस एज ट्वाइस ऑफ 0 to fx dx. बट कंडीशन है कि f2a minus x क्या होना चाहिए, fx होना चाहिए, और f2a minus x is minus x. या तो x होगा या minus x होगा. अगर वो माइनस हुआ मतलब इट विल बी ट्रीटेड एज ओड फंक्शन, तो ये आंसर हो जाएगा डायरेक्टली 0. आप कुछ करना नहीं है उसमें. कैसे? सपोज जैसे ये है 0 से लेके 2 पाई, 0 से लेके 2 पाई को वी कैन ब्रेक इनटू 2 पार्ट्स. 0 से लेके पाई, और सेम दूसरे वाले में क्या रहेगा, वही 0 से लेके पाई है, मतलब पाई टू 2 पाई एक ही बात है. दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है. तो उसने क्या किया, उसको ब्रेक कर दिया. कहाँ से? 0 से लेके fx में प्लस इंटीग्रल 0 से लेके f ऑफ, दूसरा वाला क्या था 2a minus x था ना, ऐसे ब्रेक किया था अभी पिछली वाली प्रॉपर्टी में. ये ब्रेक करने के बाद दिस विल रिमेन सेम fx dx. अब वो बोल रहा है कि जो आपने इसमें ब्रेक किया है, अगर ये फंक्शन fx के बराबर आता है तो आप यहाँ पे भी क्या कर देंगे, 0 to a fx dx कर देंगे. और अगर आप देखो ये 2 बार आ गई चीजें, ट्वाइस 0 to a fx dx. तो यही है वाला हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है. लेकिन हो सकता है कि जो f of 2a minus x आपने लिया है that is coming out to be minus of x. तो अगर वो minus of x आया, we already have 0 to a fx dx, तो ये क्या बन जाएगा, ये minus of integral 0 to a fx dx बन जाएगा. And this will cancel out each other and you will have the answer as 0. Clear? I hope I am clear about this property.
इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन ही मैंने इसी में कंबाइन कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, I will combine this question with this. Property number 7 and property number 8 both are like some kind of same property. जैसे यहाँ पे भी क्या है, -a to a, ये हमेशा ये इस प्रॉपर्टी में का ये खासियत है कि हमेशा माइनस सेम नंबर से प्लस के सेम नंबर पे रहता है। तो अगर आपको इस तरीके से दिया है, सपोज दिस इज -a, ये बीच में 0 एंड दिस इज a, तो आप यहाँ से यहाँ जाइए और यहाँ से जहाँ जाइए, इस दोनों का डिस्टेंस तो सेम है, तो ट्वाइस अगर मैं लिख देती हूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो मैंने पीछे किया वही मैंने यहाँ पे किया, ट्वाइस ऑफ दिस। इट इज अगेन, अगर ये fx माइनस एक्स क्या है, आपके पास f ऑफ माइनस एक्स क्या है, अगर इट आर दैट फंक्शन एज सेम एज fx, तो विल कंसीडर दैट इवन फंक्शन, और अगर नहीं है तो इट विल बी ऑड फंक्शन। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इफ यू हैव -a to a, तो सबसे पहले ऑड इवन जरूर चेक करिएगा। ऑड इवन में कैसे चेक करना है कि जो भी क्वेश्चन, दिस इज योर फंक्शन, जो भी फंक्शन आपको दिया है उसमें आपको x को रिप्लेस करना है -x से। अगर मैंने इसी में रिप्लेस किया तो आई हैव -x ऑफ क्यूब एंड साइन ऑफ the power 4 of -x, आपके पास ये आएगा। और अगर आप उसकी बात करें तो माइनस बाहर, you will have x क्यूब। अब साइन ऑफ -x भी क्या होता है, माइनस होता है, बट पावर इज 4 हियर, तो सारे माइनस माइनस मिला देंगे, प्लस बना देंगे, you will have sin to the power 4 of x। क्लियर है बात। और अगर आप इस चीज को देखो, ये फंक्शन और ये फंक्शन में ज्यादा फर्क नहीं है, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू माइनस ऑफ fx, ठीक है। और अगर ये माइनस ऑफ fx हुआ तो यू कैन डायरेक्टली कोट योर आंसर एज इंटीग्रल विल बी इक्वल्स टू 0। क्लियर है बात। अगर ये माइनस ऑफ एक्स हुआ, अब बोलोगे कि मैडम अगर प्लस हुआ, प्लस का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सपोज यू हैव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, तो मैंने क्या किया, जस्ट अपने fx को -x से रिप्लेस किया, तो आपके पास क्वेश्चन बनेगा। रिप्लेसिंग करने के लिए आपको लिमिट की जरूरत नहीं, बार लेना -x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर -x, एंड इफ यू सिंप्लीफाई दिस यू विल हैव cos x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x इनटू e टू द पावर x। ये फंक्शन सेम फंक्शन भी नहीं है, और क्या है, क्या कहते हैं, इट इज सम काइंड ऑफ सेम फंक्शन वी कैन से, नॉट एग्जैक्टली। तो ये इसको हम क्या बनाएंगे, अब आपने क्या कर देना, इन दोनों को ऐड कर देना है। देखिए नेगेटिव तो नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको ऐड कर, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकंड। इफ यू ऐड देम यू विल हैव 2 of I is equals to, लिमिट इज सेम फॉर बोथ, pi by 2 to pi by 2, and if you see again the denominator is also same, so we can add them cos x, दोनों में cos x कॉमन है, 1 plus e to the power x dx। क्लियर है, दिस विल कैंसिल आउट और 2i का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से -pi/2 to pi/2 cos x dx, and this we write twice of integral 0 to pi/2, इंटीग्रल ऑफ 0 to pi/2। cos x कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो इट विल ट्वाइस हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos x किसका है, इट इज cos x dx। cos x इंटीग्रल होता है किसका है, साइन का होता है, तो साइन ऑफ दिस 0 से लेके pi/2, तो यू विल हैव ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ pi/2 माइनस साइन ऑफ 0 दिस एंड ट्वाइस ऑफ दिस, आंसर आ जाएगा आपका 2। सो आंसर विल बी 2 हियर। क्लियर बात। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू विल आस्क इन द questions. These are the 9 properties I have discussed with you. Clear है? Let's just revise like in few seconds. The first one was change of variable. आपको वेरिएबल चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बट हाँ अगर आप लिमिट चेंज करते हैं तो फंक्शन विल बिकम द माइनस ऑफ आंसर, ओरिजिनल आंसर। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है दैट यू कैन ब्रेक डाउन इनटू 2 पार्ट्स, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है कि इफ यू हैव द फंक्शन देन, आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता फोर्थ प्रॉपर्टी में, तो रिप्लेस योर वेरिएबल विद द सम ऑफ द लिमिट्स माइनस x। और फिर 5 इसका करोलरी है, कुछ नहीं है, और 6 में भी आपका क्या है, 0 to 2 है, तो इस तरीके से आप ब्रेक कर सकते हैं। सो दीज आर द 7 एंड दिस इज 7th प्रॉपर्टी। 0 to 2 है, अगर ओड इवन इसमें चेक करना है, नॉट ओड इवन, इसमें एक्जेक्टली ओड इवन नहीं कह सकते, f of 2a माइनस x को देखना है, अगर वो f of x है देन इट विल बी ट्वाइस, अगर वो नहीं है तो इट विल बी 0। क्लियर है बात। और लास्ट प्रॉपर्टी वी कैन से 0 दिस इज -a to a। हमेशा जब भी आपको पास दोनों लिमिट में क्या दिखे, सेम नंबर दिखे, लाइक -2 to 2, -3 to 3, -pi/2 to pi/2, तो आपने सबसे पहले ओड इवन में चेक कर लेना है कि फंक्शन अगर ओड इवन है, तो अगर आपके पास फंक्शन इवन है, सॉरी ओड है, तो यू कैन डायरेक्टली कोट योर आंसर, अगर इवन है देन यू नीड टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। क्लियर है बात, कोई डाउट, कोई दिक्कत आई होप नहीं आनी चाहिए। दिस इज जस्ट अ रिवीजन ऑफ योर प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। I hope this will help you out for like questions. Clear बात। चलिए अभी the next video I'll discuss all the area under the curves and that will be sufficient for your
लाइक मेरे पास यही क्वेरी आई थी, ये वाली क्वेरीज आई थी कि आपको इंटीग्रेशन समझ में नहीं आ रहा. आई होप इट विल बी क्लियर एंड यू विल rock your exam. Till then you practice and good night.